माहौल से सभी टेंस और परेशान हैं। तो चलो आज हम थोड़ा समय कोल्हापुर की सैर करके आते हैं। चलो, ये है कोल्हापुर। यहाँ हमें सुनीता दे देशमुख इनसे मिलना है। तो अब हम पहुंचे हैं कोल्हापुर। यहाँ हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे, हम इधर मराठी में बात करेंगे। तो आगे मैं बोलती हूँ मराठी में। व्हेरी नाइस। थैंक यू। अभी मैं विजया मैम से विनती करती हूँ कि वो अपने बारे में और यूषा के बारे में कुछ कहे। विजया मैम, विजया चक्रवर्ती मैम is an ancologist and landscape designer. She has taught in St. Xavier's College and is associate leading educational institutions, corporates, NGOs, and environment group. Vijaya, please, Vijaya. Thank you, Sneha. Thank you very much. And welcome to all of you, especially Madam Deshmukh from Kolhapur. जेव्हा आम्ही तुमच्याकडे आले होते, तुम्ही एवढं चांगलं आम्हाला बघितलं, आम्ही केव्हा विसरणार नाही. That experience which we got when we visited Kolhapur. Now, few words about IPSA. Indian Women Scientists Association was started by 12 women scientists in 1972. These scientists were from different disciplines and they got together and formed IPSA in 1973. And the main objectives of IPSA is to promote science to the masses and to inculcate a scientific temperament in the community and to educate women, especially working women, through experience and education. So these were the main agenda of the IWSA. And right from 1984, green initiatives were introduced at IWSA campus, to provide environmental awareness. But in 2018, we felt that we must inculcate ecological literacy in the young children. It is not enough for us to give a healthy planet to the children. The children should also be able to take care of it. That means we need to develop their skill sets. That is why in 2018, on the World Environment Day, we started the Learning Garden at IPSA. The Learning Garden is an open air laboratory where multidisciplinary learning can take place. And it is very inclusive since the whole thing is a sensory garden. Everywhere you go, you see colorful flowers, you will see the sound of the bamboos and grasses, you can taste the different fruits and spices available there, and you can smell the aromatic leaves and fragrant flowers. So it is very inclusive. Both normal and challenged can experience the garden and benefit from it. During the lockdown, we decided, that how do we spread garden-based learning online? Because offline programs were no more possible. That is when we started the Member Enrichment Program, or MEP, under which today Deshmukh ma'am is going to do a demonstration on bonsai. And we had several programs on garden based learning, that is on birds, migratory birds, birds of Navi Mumbai. We had butterflies which visited IPSA. Then we spoke about vegetable gardening, mushrooms, and many, and Ikebana demonstrations. And today we have Madam coming to show us about bonsai. Now, what is bonsai? In Indian terminology, in Marathi and Sanskrit, we call bonsai, Vaman out because of the Vaman avatar. He was a dwarf. So we try to create miniatures of the plants, but the plant looks like is a replica of the large tree in nature. Bonsai is both a science art. Here you learn, you have to know the basic botany of the plants as well as aesthetics. That is why a bonsai is a very exquisite creation
But to nurture and take care of it, we have to incorporate the basic botanical principles, of horticulture. And today we are also going to see many specimens of bonsai. They say bonsai originated in India. When the Buddhist monks traveled to Korea and China, they carried medicinal plants with them. And these medicinal plants, when they had traveled long distances, because of the constant pruning for use, they became dwarfed and they started looking very beautiful. So when they reached China and Korea, they were looked upon as objects of beauty. And from there, they went to Japan. And in Japan, everything, any ordinary thing is converted into a very exquisite piece of art. So that is how bonsai has become absolutely exquisite. Now, thank you very much, and I would like to hand you all back to my friend Snehlata Bowser. थँक्यू विजया. चला तर आज आपण आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यांची ओळख करून घेऊया. सुनीताताई देशमुख, आपणास बालपणापासून आवड होती फुलांची. आपण MA ला इतिहासाची निवड केली. इंदुताई टिळक यांच्याकडे जपानी कला इकेबाना शिकला. मुंबईहून पारेख यांच्याकडे बोन्साय शिकलात आणि फॉरेनरांच्या शिकविण्या बोन्साय कला आपण इंडोनेशिया, जपान आणि चीन येथे गेलात. कोल्हापूर गार्डन क्लबच्या कधी सेक्रेटरी पद तर अनेकदा प्रेसिडेंट पद आपण भूषविले. अनेक महिला मंडळे, श्रमिक विद्यापीठे, प्रौढ शिक्षण विभाग येथे आपण वर्कशॉप्स घेतले. सॅलेड डेकोरेशन स्पर्धेत परीक्षक म्हणून अनेकदा पद भूषविले. बोन्साय इकेबाना याचे कार्य सांभाळत आपण पुस्तक लिहिले छंद बागेचा याची 3री आवृत्ती चालू आहे. सुनीताताई, आता हे स्टेज आहे तुमचे. उत्सुक आहोत आम्ही बघायला बोन्सायची किमया. सुनीताताई प्लीज. अच्छा, नमस्कार. आज मला अतिशय आनंद होत आहे आणि आधी मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानते की तुम्ही आम्हाला इथं संधी दिलीत आपली बोन्साय ही कला दाखवण्यासाठी. आणि सुरुवातीला मी आपल्याला आमच्या कोऑर्डिनेट त्यांची ओळख करून देते. त्याच्यानंतर मी आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करेन. तर प्लीज प्रमिला, दीपा कम. हा डॉक्टर प्रमिला बत्ताशे ह्या गार्डनिंग कोर्स ही घेतात आणि तुमच्या फूड टेक्नॉलॉजी मध्ये रसायनशास्त्र रसायनशास्त्र आणि तुम्ही जो हे लेक्चर घेतात ते सगळ्यांनी इन जनरल तर त्या गार्डन कोर्स पण हे करतात आणि अनेक ठिकाणी त्या लेक्चर्स पण देतात फूड टेक्नॉलॉजीवर. त्याच्यानंतर ह्या दीपा तैवाडे पाटील ह्या आमचं पण एक गार्डन सेंटर आहे. तर त्या गार्डनिंगच्या अनेक टेरारियम गार्डनिंग नंतर डिश गार्डन अशा अनेक कोर्सेसच्या क्लासेसच्या आपल्या सेंटरमधून देत असत. अशा या दोघी माझ्या सहकारी आहेत. तर आता आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. तर सुरुवातीला मी थोडीशी हिस्ट्री सांगेन, त्याच्यानंतर थोडीशी प्लांट्स विषयी माहिती, त्याची उपयुक्ता आणि त्याच्यानंतर आपण स्लाइड शोद्वारे त्या बोन्सायची माहिती घेऊ आणि त्याच स्लाइड शो करतच मी आपल्याला सगळी त्याची माती कशी करायची, त्याचे झाडं कशी मिळवायची, त्याचे प्रकार कोणते वगैरे माहिती आपण स्लाइड शो करतच घेऊया. त्याच्यानंतर आपण डेमो घेऊया आणि मग आपला कार्यक्रम म्हणजे तिथपर्यंत आपला कार्यक्रम संपून जाईल. तर सुरुवात करूया आपण. तर प्रेझेंटेशनला नको थोडस एक. तर ही अतिशय प्राचीन अशी कला आहे. त्याला जवळजवळ 1300 वर्षाचा इतिहास आहे.
सुरुवातीला ही कला म्हणजे आपण आता चक्रवर्ती मॅडमनी सांगितलं की ही इंडियात म्हणजे आपल्या भारतात पण ही ह्या भारतीय लोकांना पण ही ज्ञात होती. वेदामध्ये त्याचा हे उल्लेख आहे. वामन वृक्ष असा त्याचा उल्लेख वेदामध्ये, ऋग्वेदामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. पण आपण काही असं त्याच्यामध्ये काही पुढे प्रगती नाही केली. आश्रमाच्या बाजूला ऋषी मुनी जंगलातनं झाडं आणून, औषधी वनस्पती आणून त्या लावत छोट्या ह्याला, आणि तिथूनच त्या ह्याला सुरुवात झाली असावी. त्याच्यानंतर दुसरी आठवण आहे साधारण अशोकाच्या काळात म्हणजे बौद्ध धर्माबरोबरच ह्याची सुरुवात झाली असावी असं मानलं जातं. बौद्ध धर्माच्या ह्याच्या अशोकाच्या काळात बुद्ध धर्म अतिशय भरभराटीला आला होता. त्याची मुलगी संघमित्रा ही आपली बोधिवृक्षाची फांदी घेऊन सिलोनला गेली आणि तिथं ती ह्या पद्धतीने तिचं जतन करून ती सिलोन घेऊन गेली. आता ही इंडियन ह्याची सुरुवात मानली जाते. आता प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या दंतकथा सांगितल्या जातात. आणि आता तसं बघायला गेलं तर तसं आपल्याकडं वेदांचा तर पुरावा आहेच, पण चायनामध्ये ही सुरुवात झाली असं मानलं जातं. प्रत्येक जण वेगळ्या वेगळ्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे सांगत असत. दंतकथाद्वारेचा ते 1200-1300 वर्षाचा इतिहास आपण सांगू शकतो, तसे सबळ पुरावे नाहीत. पण चायनामध्ये रेशमांची वस्त्र वगैरे, नंतर काही फोटो, लाकडावरचं कोरीव काम, हे त्या काळच्या ह्याच्यातलं दिसून येतं. त्यावेळेला एकमेकाला अशी प्रेझेंट केलेली वगैरे ही झाडं बोन्सायची दिसतात. पण त्याच्यानंतर काय झालं, त्याच्यानंतर ती जपानला गेली आणि आजची जी हे आहे म्हणजे आजची जी प्रगती आहे ती जपानांनी केलेली आहे. आज संबंध जगभर ही कला प्रसिद्ध होते, तिचा अभ्यास केला जातो, एक्झिबिशन भरवले जातात, कन्व्हेन्शन होतात आणि अतिशय सुंदर रीतीने ह्याचा प्रसार चाललेला आहे. आणि ही एवढी जुनी कला टिकली कारण ती तेवढ्याच योग्यतेची आहे, तेवढ्याच ह्याची आहे, म्हणून ती टिकली आणि आज तिचा जगभर प्रसार होतोय. ह्या कलेची उपयुक्तता ही खूप आहे. हे म्हणजे मेडिटेशनसाठी होतो. त्याच्यानंतर आता जागेची कमतरतेमुळे आपण वनस्पती वाढवू शकत नाही. ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी झाडं लावा वगैरे आपण म्हणतो, पण झाडं लावायला जागाच नाही. पण ह्या खूपशा वनस्पती आपण ह्या माध्यमातून लावू शकतो. अगदी टेरेसवर छोट्याशा 150-200 झाडांचं आपण संगोपन करू शकतो. अशा रीतीनं ही बोन्सायची कला आता बहुतेक सगळ्यांना जवळजवळ माहिती आहे. बोन्साय म्हणजे काय, त्याचा म्हणजे उपयोग काय, आणि सगळ्यांना एक क्युरियोसिटी आहे की ही म्हणजे कसं असतं, झाड वाढवलं कसं जातं, आपण वाढवू शकू की नाही, असं हे म्हणजे प्रत्येकाच्या मनात एक कुतूहल असतं. तर आपण बघूया. आता स्लाइड शो द्वारे मी आपल्याला दाखवेन आणि त्या संदर्भात मी त्याची माहिती देईन. आणि अच्छा, बहुत ही सुंदर ऐसी आर्ट है. बहुत ही प्राचीन ऐसी कला है. इसका उपयोग भी बहुत है. आपल्या पश्चिम घाटातल्या बऱ्याचशा वनस्पती नष्ट होताना दिसतात आहे. तर ह्या वनस्पतींचं संगोपन आपण ह्या माध्यमातून करू शकतो आणि मेडिटेशनसाठी सुद्धा सुंदर ह्याचा उपयोग होऊ शकतो. पुष्कळशा गृहिणी रिकाम्या असतात. आजकाल स्ट्रेस पण सगळीकडे जास्त आपल्याला बघायला मिळतो. विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनाधीनता वाढतीये, गृहिणींमध्ये निराशा येत आहे. तर ह्या माध्यमातून आपण जर गेलो, ह्या छंद आपण जर जोपासला तर ह्याचे बरेच फायदे आहेत. एक तर स्ट्रेस, नंतर तुम्हाला एक व्यवसाय म्हणून पण ह्याचा उपयोग करता येईल. नंतर तुम्हाला ह्या पर्यावरणाचं पण संगोपन करता येईल आणि वनस्पतींचं बायोडायव्हर्सिटीचा याचा उपयोग होऊ शकेल. आता ही काही जुनी ही काही जुनी ऐतिहासिक हे आहे चायनामधली. तर ह्याच्यामध्ये त्यांच्याकडे बोन्साय शोभेसाठी ठेवलेलं दिसतं, कोणी गिफ्ट म्हणून देत आहे. आता ही एक जापनीज तरुणी आहे, तर ती म्हणजे बोन्सायचं निरीक्षण करते. हे जुने असे फोटो आहेत त्यांच्याकडचे.
तर आता आपण हे सर्वसाधारण बोन्सायची आपण माहिती बघितली. आता आपण डायरेक्ट बोन्साय कसं, कारण आपल्याला वेळेचं बंधन आहे त्यामुळे आपल्याला लवकर लवकर माहिती घ्यायची आहे, तर त्याच्यासाठी आपण सुरुवात करूया. आता बोन्सायचं साधारण क्लासिफिकेशन 3 प्रकारात केलं जातं. स्मॉल साईज बोन्साय, मीडियम साईज, बिग साईज आणि चौथा एक हल्ली नवीन प्रकार आला इम्पिरियल. तर स्मॉल साईज मध्ये सुद्धा 2-3 प्रकार आहेत, एवढ्या डिटेलमध्ये जाण्यात काही हे नाहीये. साधारण 12 इंचापर्यंतच्या आतल्या बोन्सायना स्मॉल साईज म्हणतात. त्याला म्हणजे मामे बोन्साई म्हटलं जातं. तर ह्याच्याकडे माझ्याकडे आहे, तर मी एक अच्छा ओके. तर ही स्मॉल साईज, ही पहा, ही स्मॉल बोन्साय अगदी दिसायला अतिशय सुंदर आहेत. ही आपल्याकडची नाही आहेत, ही बाहेरची आहेत. खूप अगदी कलात्मक रीतीने वाढवलेली आहेत. अतिशय छोटी क्यूट अशी ही बोन्साय आहे. त्याच्यानंतर ही बिग बोन्साय, तर ही बिग बोन्साय साधारण अशी दिसतात. याच्यानंतर आपण साधारण 3 साईज बघितल्यानंतर पुढे आपण परत त्याची माहिती घेणार आहोत. तिन्ही साईजचे पिक्चर बघणार आहोत आणि आता ह्याची आपण माती. तर ह्याच्या बोन्साय करण्यामध्ये मेन हे जर हे असेल ह्याच्यामध्ये तर माती, तर तुमची माती तुमची व्यवस्थित पाहिजे. तर ह्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी स्थानिक म्हणजे लोकल तिथली जी असेल ती वापरली जाते आणि वेगळ्या ज्या झाडांना जशी लागेल त्या पद्धतीने सुद्धा बदल केलेले जातात. पहिली आपण आपल्याकडं म्हणजे वाळू, विटांचा चुरा आणि गांडूळ खत असं हल्ली वापरलं जातं. साधी बागेची माती फार थोडी वापरली जाते. आता वायरिंग टेक्निक बघणार आहोत आपण. तर तुम्ही ऐकलं असेल की झाडाला वायरिंग करावं लागतं. हेलो हेलो सुनीति मैम थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बोल दीजिए, थोड़ा थोड़ा हिंदी में. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मराठी नहीं समझती, इसलिए थोड़ा बोलेंगे, जस्ट फ्यू वर्ड. मैं ट्राई करती हूँ. पहली बार बोल रही हूँ, गलती हुई तो माफ करना. नो प्रॉब्लम. ये वायरिंग का टेक्निक है. तो इसी तरह से वायरिंग की जाती है. वायरिंग का उपयोग एक पेड़ को देने के लिए, और दूसरा जो ट्रे रहता है वो फ्लैट रहता है, इसे सपोर्ट देने के लिए वायरिंग किया जाता है. इसी तरह विदाउट वायरिंग का ये दिखाया है. उसके बाद में वायरिंग करने के बाद उसका इफेक्ट कैसा होता है वो दिखाया है. ये पूरा वायरिंग होने के बाद ऐसा पेज दिखता है, ये दिखाया है. बेसिक इक्विपमेंट, एडिशनल टूल्स. अब हम टूल के बारे में और टूल्स लगते हैं उसके बारे में हम बोलेंगे. इसी तरह के टूल्स लगते हैं. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि महंगे जापानीज वगैरह टूल्स चाहिए. वो आप सीधे गार्डन में जो यूज करती है सिकेटर, कैंची, वो उससे भी काम चलता है. ये दूसरा है. इसमें जो है पावर के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं. वो पावर के इंस्ट्रूमेंट आप एडवांस सीखते हैं करते हैं उसी वक्त वो पावर टूल्स यूज कर सकते हैं. और इसमें ब्रश है और वायर है और तरह तरह की छन्नी रहती है, क्योंकि जो मिट्टी में डस्ट रहती है वो डस्ट नहीं रहना चाहिए, वो डस्ट निकालना चाहिए. इसलिए हम छाननी से वो मट्टी छाननी पड़ती है. ये इसी तरह के पॉट रहते हैं. ये बोनसाई के अलग अलग साइज के पॉट है. ये देखिए छोटे बड़े, और इसके पॉट की जो ऊंची है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दो स्टाइल के बोनसाई के लिए ज्यादा ऊंची के पॉट लगते हैं गैस के, बाकी के सब फ्लैट रहते हैं. क्योंकि फ्लैट इसमें जो इफेक्ट मिलता है हमको, वो इफेक्ट इसे ऊंचा
लंबाई के जो पॉट रहते हैं उसमें नहीं मिलता, इसलिए फ्लैट फ्लैट पॉट रहते हैं। ये देखिए, इसमें पॉट में जो होल है उस पर नेट डाला है और इसी तरह से ये बोनसाई की हम शुरुआत करते हैं। अब हम देखेंगे गैस्केट, सेमी गैस्केट, स्लैंटिंग, इनफॉर्मल अपराइट, फॉर्मल अपराइट, ब्रूम, विंग शेप। ये जो स्टाइल है ये बेसिक स्टाइल है, इसके अलावा बहुत सारे स्टाइल है, लेकिन ये जो बेसिक मीन्स ये जो में हमको दिखाई देते हैं, नेचर में देखते हैं हम, गैस्केट स्टाइल, सेमी गैस्केट, स्लैंटिंग, ये सब हमको, ये क्या मनुष्य ने निर्माण नहीं किया है, ये निसर्ग नेचर में जो है उसका अभ्यास करके ये लोगों ने इतना बेसिक स्टाइल बनाई है। फॉर्मल अपराइट हम नेचर में देखते हैं, तो फॉर्मल अपराइट इधर एक बाजू में स्केच है और एक बाजू में एक्चुअल बोनसाई का पेड़। फॉर्मल अपराइट कैसा रहता है, इसका स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। फॉर्मल अपराइट ये पहली स्टाइल है, ऐसे नेचर में आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट ये इनफॉर्मल अपराइट है। इनफॉर्मल अपराइट यानी उसका जो ये है स्टेम है, ये झिकझाक करके टेढ़ा ऐसा रहता है, इसको इनफॉर्मल अपराइट बोलते हैं। ये जो तीसरा स्टाइल है वो गैस्केट। तो गैस्केट स्टाइल क्या है, वो पर्वत के ऊपर पेड़ उगते हैं और नीचे दरी में वो ऐसे झुक जाते हैं, और उसी तरह का इफेक्ट वो हमने पॉट में दिया है, उसको गैस्केट स्टाइल बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक सेमी गैस्केट और दूसरा है जो ये सेमी गैस्केट है, ये इसी तरह से दिखता है, स्केच है एक बार एक तरफ और दूसरा जो है वो एक्चुअल प्लांट है। ये बुंजिम स्टाइल है, ये बहुत ही वाइज स्टाइल कहलाई जाती है। तो जंगल में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ रहते हैं और उसको सूर्य का प्रकार लाइट नहीं मिलता, तो वो ऐसा सब पेड़ को बाजू करके ऊपर जाता है और इसके स्टेम पर एक ही पत्ता नहीं रहता, खाली स्टेम टेढ़ा मेढ़ा होके ऊपर जाता है और वो सनलाइट लेता है, तो इसको बुंजिम स्टाइल कहते हैं। ये है रूट ओवर रॉक स्टाइल। आपने जंगल में देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ रॉक पर आते हैं, ये इसी तरह है, ये रॉक स्टाइल है, ये रॉक के ऊपर लगाया है, ये जैसा नेचर में है वैसा हम बना सकते हैं। ये ट्विन ट्रंक, इसका मतलब होता है पेड़ को एक ही ट्रंक नहीं रहता, तो उसको ट्विन रहता है, दो रहते हैं, कभी कभी तीन रहते हैं, कभी कभी मल्टी ट्रंक रहते हैं। तो ये सब अपने को पॉट में ये सब अपने को बनाने को आता है, ये ट्विन ट्रंक का है। ये है रॉक प्लांटिंग, रॉक वर्क प्लांटिंग। रॉक, ये देखो कितना सुंदर पेड़ है, और ये निसर्ग का जो दृश्य है वो घर में हम पॉट में भी बना सकते हैं, तो अपना मन प्रसन्न हो जाता है। तो रॉक के ऊपर ही गैस्केट स्टाइल है, बहुत ही सुंदर है। ये भी है, एक सिंपल है, सिंपल रॉक के रॉक पर ही इसका फाइकस का पौधा है। ये ऐसे आपको जुने पुराने मंदिर या दीवार, इस पर आपको ये नदी किनारे के वो क्या ब्रिज वगैरह रहते हैं, तो अपने को ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, तो वो वहां से निकल कर आप ला सकते हैं। खाली आजकल जंगल में जाकर वाइल्ड कलेक्शन एक सोर्स है, लेकिन वो क्या है, वाइल्ड में आप जंगल में आप नहीं कर सकते, तो ऐसे भी जुड़े पुराने दीवार या मंदिर
इस पर हाँ कलेक्ट कर सकते हैं। इसका दो तरीके से फायदे होते हैं। एक तो अपने को पेड़ ही मिलता है पुराना, और उसको जीवदान देने का पुण्य भी मिलता है, और वो जो मंदिर का आप निकाल सकते हैं तो वो मंदिर या दीवार भी बच जाती है। एक है ये हमारे इधर का नहीं है, बाहर का है, इनफॉर्मल अपराइट। ये इनफॉर्मल अपराइट का अब हमने पहले ही देखा है, ये उसका बड़ा पेड़ है, यानी उससे बड़ा है। इनफॉर्मल इसका जो ट्रंक लाइन है और टेढ़ा मेढ़ा है, ये भी इनफॉर्मल अपराइट है। टाइनी बोन्स है, ये बहुत ही सुंदर प्रकार है। अगदी कम से कम जगह में हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, बहुत ही क्यूट दिखते हैं। छोटे छोटे पेड़ में जो फूल आते हैं, फल आते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है और अब अपना मन आनंदित हो जाता है। और दूसरा, आजकल आनंद में ये करना, ये भी बड़ी बात हो गई है। ये देखिए कितने छोटे छोटे इस पर एक बिल्कुल तर्जनी के 2 अंगुली के इसमें भी इतना सुंदर पेड़ हम बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान देना पड़ता है बिल्कुल, पर लेकिन बना सकते हैं। ये देखिए इतना सुंदर पेड़ है। ये देखो छोटे से पेड़ को कितने सारे फल आए हैं। उन्होंने बहुत सारे ये लिए, लेकिन हम तो ऐसा कर सकते हैं, प्रयत्न तो कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ है, और खाली ये छोटे खिड़की में भी हम 10-15 आराम से रख सकते हैं। ये देखो रॉक पर बनाया हुआ है, बहुत सारा सुंदर प्लांट है। स्मॉल बोनसाई अब देखेंगे, स्मॉल साइज। ये टाइनी बिल्कुल छोटे बोनसाई देखेंगे, अब देखेंगे स्मॉल साइज बोनसाई। ये देखिए ये सब स्मॉल साइज है। ये इतना पिक्चर दिखाने का मेरा ये इंटेंशन ये है कि ये देख के हमारा मन करता है, नहीं हमको भी ऐसा बनाना आना चाहिए। ये इतना ही ये नहीं है, कठिन नहीं है, आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा एक सुबह का 1 घंटा, आधा घंटा ही नहीं लगता। जब हम ध्यान देंगे तो ऐसे सुंदर सुंदर पेड़ हम बना सकते हैं। देखिए कितने फल, अपने इंडिया में बहुत सारे फल के पेड़ है, तो इसी तरह से लग सकते हैं। गैस्केट कैन गई, फिर एक बार गैस्केट, ये देखिए ये सब गैस्केट, सेमी गैस्केट। बहुत सारे पेड़ देखने के बाद वो आपको स्टाइल याद में रहेगी, इसलिए हमने बहुत सारे फोटोज दिखाए हैं। ये सब गैस्केट। ट्विन ट्रंक, फिर है ट्विन ट्रंक। फिर यदि आप कौन से भी एग्जीबिशन बोनसाई के देखने जाएंगे तो आप सब इतना, आज तो खाली इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक होगा, तो अपने को मालूम होगा कि जब आप एग्जीबिशन में जाएंगे तो ये कौन से तरीके का पेड़ है, स्मॉल साइज है, बिग साइज है या मीडियम साइज है, ट्विन ट्रंक है, गैस्केट है, इतनी तो जानकारी कम से कम आपको मिलेगी। ये ट्विन ट्रंक है। मल्टी ट्रंक, अब नेचर में मल्टी ट्रंक भी पेड़ होते हैं। प्रत्येक हर एक पेड़ की ब्यूटी अलग रहती है, कैसा भी हो वो निसर्ग में बहुत सुंदर दिखता है। ये मल्टी, अपने के यहाँ बरगर यानी वड़ का पेड़ है, वो मल्टी ट्रंक रहता है। पीपल का होता है फॉर्मल अपराइट। ये फिर से आपको फॉर्मल अपराइट ऐसा दिखता है, स्ट्रेट, उसका जो ट्रंक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये फॉर्मल अपराइट स्ट्रेट है। विंड शेप, ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है। निसर्ग में हम जाते हैं नदी के किनारे, तो हवा के झोंके से वो पेड़ झुकता है, और इतनी हवा आती है कि वो पेड़ का शेप वो विंड शेप, हवा की झोंक से विंड शेप जैसा होता है। ये देखिए, अब तो देख के लगेगा, आपको लगेगा कि वो
हवा चल रही है और पेड़ हवा से झुक रहा है। मीडियन फॉरेस्ट ग्रुप देखेंगे, ये अपने यहाँ इलायती चिंच हम बोलते हैं, तो उसका ये ग्रुप फॉरेस्ट है। ये सब फॉरेस्ट स्टाइल है। बहुत सारे स्टाइल हम छोटे से जगहों में बना सकते हैं। फॉर्मल अपराइट है ये, आप इसको क्या बोलते हैं, पिंपरनी है, बहुत ही जल्दी हो जाते, इसका बोनसाई हो जाता है, स्टर्डी पेड़ है और है आसानी से हम बना सकते हैं। पाइन है, पाइन है, विदेश में ज्यादा से ज्यादा पाइन, जूनिपर ऐसे पेड़ के बोनसाई बनाते हैं, लेकिन अपने भारत में तो बहुत सारे, अब ये बोगनवेलिया, ये बोगनवेलिया स्टर्डी प्लांट है, बहुत सुंदर दिखता है, 3-4 महीने इसको फूल ही फूल रहते हैं, ऐसे देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत सारे कलर है इसमें। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है, देखने से ही मन एकदम खुश हो जाता है। ये देखिए ये गैस्केट स्टाइल है। ये देखिए इधर का है, बहुत सारे चेरीज लगे हुए हैं। एप्पल का पेड़ है, एप्पल का आप बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन पाइन, उधर से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया बाहर पाइन का ज्यादा बोनसाई के लिए यूज करते हैं। तो जापान में तो हमने 700 साल का ये पाइन का पेड़ देखा, बोनसाई देखा। हमको जापान जाने का जब ये हुआ, कन्वेंशन के लिए मैं गई थी, तो मुझे एक संधि मिली, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट किमोरो है, उसके गार्डन में जाने का, तो थोड़े बहुत फोटो वो उनके गार्डन के हैं। उनको तो बोनसाई का जादूगर बोला जाता है। बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन किया उसने पहले का। ये सब उनके पेट के फोटोज है। ये माय बोन्स है। ये जो है ये 6 ईयर का है, प्रेमना है, ये फाइकस है, फाइकस ग्रीन आइलैंड है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप आपको देखने का था ना, तो ये लैंडस्केप। ये बॉक्सवुड है, ये फाइकस ग्रीन आइलैंड, पिंपल का ट्री है, ये फाइकस न्यूडा है, और ये थोड़ा सा मेरे गार्डन का है। उसमें आप देख रहे हैं वो म्यूरल है, बोनसाई का म्यूरल बनाया हुआ है। ये बाहर के जो मास्टर है उनके साथ मुझे वर्कशॉप करने का ये मिला था, और ये मेरा किताब है छंद बागेचा, महिता पब्लिशर ने प्रसिद्ध किया है। तो ये इसकी 3 आवृत्ति हो गई है। नमस्ते। अब हम ये देखेंगे, डेमो करके देखेंगे। क्या थी हिंदी में? हिंदी आपल्यालाच करायला लागेल. आता काय करूया आपण? तुला पण फुल स्क्रीन. आपको जो हमने ट्री दिया है वो क्यूप्रेसिस है, और फॉर्मल अपराइट स्टाइल बनाने की। त्यांना विचारा फुल स्क्रीन. हाँ
तुम्ही आधी पाणी फुल स्क्रीन त्यांनी करायचंय. स्पीकर व्ह्यू ज्याला म्हणतो आपण तो. मी ते पॉट तयार करून घेईन आणि तोपर्यंत मी ते मग झाड काढून तो म्हणजे वेळ जाणार नाही. इथे घ्यायचे ना आणि मग कापायचं. फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन तुम्हाला फुल स्क्रीन काय म्हणते. ये थोड़े से मेरे पास से लाए हुए स्मॉल साइज. Visible to everyone? Hello? हेलो. Yeah. Is it visible to everyone? The screen is visible to everyone? Yes, yes, it's visible. It's visible. Yes, ma'am. ये थोड़े स्मॉल साइज के बोन्स है. A4 दिया है. No, it is not visible. पैथोडिया है. इसको बर्ड शेप आया है. ये 15 साल का है और ये जेड है. प्लीज मैडम प्रेजेंट अगेन. नहीं मैडम, नॉट विजिबल. सुनीता मैडम आप उसको पिन कर दीजिए, फुल स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी. नहीं नहीं, एक भी नहीं आया. नहीं नहीं, आप उनका जो है ना हाँ छोटा हाँ. ब्लॉक उस पे पिन कर दीजिए तो आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी. यहाँ तो हमारी फुल स्क्रीन है. नहीं आपका दिखता है पर वो उसमें गैलरी मोड में है वहाँ पर. तो पिन कर देंगे ना, पिन करके आपकी स्क्रीन पे पूरा आ जाएगा. हम तो पिन कर लिया. नहीं आप आ नहीं. गया. हाँ हाँ आ गया. हाँ आ गया? आ गया. आ गया. नो प्रॉब्लम. Okay. यस. ये थोड़ा सा मेरे स्मॉल साइज बोन्स है. ये जेड है. जेड है. दिख रहा है. दिख रहा है ना. ये 7-8 साल का है. ये पैथोडिया है. इसको बर्ड का शेप आ गया है इसलिए हमने ये किया है. नेत्राचा साइडला दाखवा. प्लेन बॅकग्राउंड आहे. ये डुरांडा है. ये थोड़े से स्मॉल साइज बोन्स है. ये रॉक पर लगाए हुए हैं. इफोर्बिया मीडिया है. और ये फाइकस न्यूडा. हे काय एवढं चांगलं म्हणजे ये है प्रेमना. इसको कोकोडमा बॉल इसको बोलते हैं. इसके मट्टी के बॉल में ये बनाए हैं. 7-8 साल का ये पेड़ है. इसका जो बस हम अब शुरू करते हैं डेमो. तर त्यांना आधी प्लांट दाखवा आणि मग तुम्ही पॉट करा आणि प्लांट पहले हम जिसका बोनसाई बनाने का है वो दिखाएंगे आपको. ये गोल्डन सिप्रेसिस है. दिखाई दिया आपको. ये गोल्डन सिप्रेसिस है. यस यस ठीक. हाँ. तो इसका हम बोनसाई बनाएंगे आज. तो इसका कटिंग है. तो कटिंग इसको क्या करने का है. पहले जो इसका रूट का ये है वो सब साफ कर लेने का है. इसके रूट का जो ये है ये दिखना चाहिए इधर का. ये उससे आपको स्टे तो आपको ये उससे आपको मालूम होता है कि ये पेड़ कितना पुराना है. उससे तो
नीचे जो ब्रांच है वो नहीं रहना चाहिए, वो सब क्लीन करके ब्रांचेस रखने पड़ते हैं। और जो ब्रांचेस है तो दो ब्रांच में ऐसा एक बॉन्ड इससे आसानी से जाएगा, इतना डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ? और दो ब्रांच में अंतर रखना चाहिए, उस हिसाब से हम वो पेड़ का सब कटिंग करेंगे। तो पहले हम उसका थोड़ा सा लेंथ कम कर लेते हैं, बाद में ब्रांचेस कर लेते हैं, बाद में नीचे का जो स्टेम है उसको नेबारी कहते हैं, वो जरा सा हम कट कर दिखाई देते हैं। तो वो पूरा क्लीन करने के बाद आपको सब मालूम पड़ेगा। तो देखना चाहिए कि ये पेड़ चारों तरफ से देख के इसका फ्रंट कौन सा रखने का है, बैक कौन सा रखने का है। फ्रंट पर क्या करने का है, जो फ्रंट का ट्रंक लाइन है या जो ट्रंक लाइन है वो दिखनी चाहिए 2-4 तक, इसके ऊपर ब्रांच नहीं आनी चाहिए। इससे पहले हम इसकी लंबाई कम करते हैं। हाँ, टर्न तुम्हें फोटो काढला आफ्टर एंड बिफोर। तो हम इतना इसका लंबाई कम कर लेंगे। पहले हम सब पेड़ साफ कर लेंगे, उसके कटिंग कर लेंगे, बाद में उसे निकाल कर पॉट में डालेंगे। एकदम भी ज्यादा नहीं कट करने का, क्योंकि एक बार कट किया तो फिर लगता नहीं, तो फिर आपको लगा कि नहीं अरे और थोड़ा रखना चाहिए था, तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा कट करके। అయితే देता का प्रमिला तो लंबाई पॉट के हिसाब से उसकी लंबाई रखनी पड़ती है। तो अब थोड़ा सा प्लांट हम क्लीन कर लेंगे। सब नीचे के ब्रांचेस है वो सब हम साफ कर रहे हैं। ये देखिए उसका जो ये है वो सब हमने साफ किया है। और ट्रंक लाइन है ये दिखनी चाहिए यहाँ तक, यहाँ इसके ऊपर हम रख सकते हैं और थोड़ा हम कम कर देंगे। और जो नीचे के एक ब्रांच है वो ऊपर उसको रखेंगे, क्योंकि पेड़ को क्या बोलते हैं उसको अपेक्स चाहिए। तो ब्लंट कट नहीं होना चाहिए, ऐसा खाली ब्लंट किया तो अच्छा नहीं दिखेगा, पेड़ की तरह नहीं दिखेगा। ये तो अब ये ऐसा पूरा करने से अभी पेड़ के जैसा लगेगा। और अब काम करेंगे, वायरिंग करेंगे इसको। इसका जो डेड ब्रांचेस है वो सब निकाल देंगे।
एक फर्स्ट ब्रांच इधर रखी तो अल्टरनेट उसके सामने की ब्रांच नहीं रखने की, उसके बाद अल्टरनेट ऐसे थोड़े से उसका अंतर रखे दूसरी रखने की, इसके सामने दूसरी नहीं रखने की, इसके थोड़ा अंतर रखेंगे फर्स्ट सेकंड और बैक में भी ब्रांच होना चाहिए, नहीं तो वो पेड़ ऐसा फ्लैट जैसा हो 3 डायमेंशन यानी बैक में रखेंगे तो पेड़ चारों तरफ से अच्छा दिखेगा। तो इधर 2 ब्रांचेस है, कौन सी कट करूं कौन सी रखूं ऐसा होता है मन में, फिर थोड़ा सा विचार करके कौन सी अच्छे दिखेगी वो देख के कटिंग करने का। एक बार कटिंग किया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, नहीं ब्रांच नहीं ला सकते। ही राहू दे मला वाटतं। सबसे पहले इसका नेबारी यानी जो ये है ट्रंक लाइन और रूट जहां मिलता है वहां से पेड़ का एज अपने को मालूम पड़ता है। अब हम ये ब्रांच कट करेंगे, बहुत अच्छी है एकदम बाजूला जाते, ही ट्रंक लाईन आहे, एकदम बॅकला जाते, पण ही ब्रांच छान आहे। हा तर थोडासा विचार करून मग कट करूया, आणि एवढं झाड पुरेसं आहे ना, की एवढं पुरेसं आहे, ठीक आहे। आणि मग आपण हे ब्रांचिंग करून एक इकडे घेऊ, हे इकडे घेऊ, दोन्हीपैकी एक कट करायला हवी, पण ही कट करूया, ओके। मी वायरिंग पण आताच करून घेते आणि मग तुम्ही ते मुळ हे करून आणणार तेव्हा ते मॅडम तुम्ही सांगणार का कशाला तुम्ही खालचं ब्रांचेस कापतात? खालचं आपल्याला त्याची स्ट्रेमलाईन दिसली पाहिजे, नंतर जे आपण रूट आणि हे स्टेम ह्याच्यामधला जो भाग असतो तो ओपन केला पाहिजे, त्याच्यामुळे आपल्याला झाडाचं वय दिसतं। काय सगळीकडे खूप पानं असली की आपल्याला त्या झाडाचं एज दिसणार नाही, दिसायला ते चांगलं वाटत नाही, म्हणून आपल्याला स्टेम दिसलं पाहिजे, स्टेम दिसलं पाहिजे। थँक्यू मॅम। नाही तर झाडाचं वय आपल्याला कळणार नाही। Thank you, ma'am. See, what madam is trying to tell us, to show the age of the plant, she needs to expose the trunk, because all big trees have a trunk, and also the roots are exposed. When you see old aged plants, the roots, you can see them above the ground. So that is what madam is trying to do by removing the lower branches and some of the soil near the trunk. So now you have a trunk which is formed. तर आपण हा अपेक्स ठेवणार आहोत, तरी सुद्धा आपण ह्याची उंची कमी करणार। आता आपण बहुतेक थोडस प्लॅन्ट क्लीन करून घेतलेला आहे आणि काही ब्रांचेस कट करायच्या राहिलेल्या आहेत। आता आपण त्यांना वायरिंग करून शेप देणार आहोत। थोडस वायरिंग केलं की आपल्याला त्याला पुरेसा शेप येईल आणि हे पण क्लीन होईल। आधी सुरुवातीला आपण त्याचा ही फॉर्मल अपराईट, तर आपली ही स्टेम लाईन आहे ही सरळ दिसते, ही इनफॉर्मल नाहीये, वेडीवाकडी नाहीये, तर ही जी आपण करतोय हे
फ्रंटलाईन ही स्ट्रेट आहे, म्हणून ही जी स्टाईल आहे ही फॉर्मल अपराईट. आता आपण ह्याला वायरिंग करणार आहोत. वायरिंग आता ह्या 3 प्रकार म्हणजे वायरिंग जो वायर है वो 2-3 प्रकार की आती है. एक एल्यूमिनियम की आती है, एक कॉपर की आती है और दूसरी वो पाउडर कोटेड आती है. तो ये एल्यूमिनियम की भी अच्छी रहती है और ये कॉपर की भी अच्छी रहती है. चाइना जापान में वो बोनसाई के लिए अलग तरीके के खास बोनसाई के लिए वायर बनाई जाती है. हे 4 तुकडे करा आणि ते नेटला लावा. नेट द्यायचं आहे आपल्याला लवकर. वायरिंग करते समय ये देखना चाहिए फांदी ये ब्रांच की ये जाड़ी कितनी है, उस हिसाब से वायर लेना. ये जो जाड़ी ज्यादा होगी तो वायर ज्यादा लेना पड़ता है और जाड़ी कम थिन हो तो वायर भी थिन तरीके से लेना चाहिए. जाड़े इनको ब्रांच को जाड़ी वायर यूज करना चाहिए. ये बहुत प्रकार की आती है, कम ज्यादा गेज की. तो हम ये ब्रांच हो जो है वो थोड़ी सी थिक है, इसलिए हम ये यूज करते हैं. तो वायर करते समय आपको ये ब्रांच का वायर करने का है तो इससे 1.5 वायर आपको लेना चाहिए. इससे क्या होता है कि आपकी वायर वेस्ट नहीं होती. तो इस ब्रांच को वायर करना हो तो इसको जो ये है वायर है वो नीचे से वो ब्रांच के नीचे से ही, ये देखिए ब्रांच के नीचे से ही लेना पड़ता है. इस वायर को हम शेप देने का है तो जो वायर है वो नीचे से ही लेनी पड़ती है. और ये जो हम वायर एक करते हैं लगाते हैं तो एक ही तरफ से लेना पड़ता है, क्रॉस नहीं होनी चाहिए. मॅडम तुम्ही कुठला वायर वापरतात? मी हे तांब्याची ज्योती मॅडम कडचीच वापरते. अच्छा अच्छा, म्हणजे अल्युमिनियम कॉपर कोटेड आहे का? कॉपर हा नाही, अल्युमिनियम पण चालू शकते. जास्त थिक जी असते ती अल्युमिनियमचीच असते. आता अल्युमिनियम कॉपर कोटेड पण मिळतंय ना? कॉपर कोटेड पण मिळते आणि खास बोनसाय साठी पण केलेली मिळते चायना जपान मध्ये. आणि ती आपल्याकडे पण काही लोक ठेवतात, काही नर्सरीवाले ठेवतात. तर आपण हे प्रत्येक ब्रांचिंगला वायर करून घेणार आहोत आणि नंतर त्याला शेप देणार आहोत. सब ब्रांच को हम वायर करेंगे और बाद में उसको शेपिंग करेंगे. वायर बिल्कुल नजदीक से ही, ब्रांच के बिल्कुल नजदीक से ही लपेटना चाहिए. नहीं तो क्या होता है वो ये नहीं शेप नहीं देना आता, लूज पड़ जाती है और आपको जो आपको शेप देना का है वो नहीं दे पाते हम. याची वाढ खुंटली पाहिजे म्हणून आपण याला वायरिंग करतोय ना? नहीं, ही वायरिंग 2 कारण से किया जाता है. एक तो इसको शेप देने के लिए और दूसरा जो पॉट में एक पॉट रहता है वो फ्लैट रहता है, उसे पेट पड़ना नहीं चाहिए, इसलिए सपोर्ट के लिए भी वायरिंग की जाती है. ये हम वायरिंग कर रहे हैं उसको पेट को शेप देने के लिए. ये जो ब्रांचेस है वो ऊपर है, वो अपने को नीचे लेने का है और उसको थोड़ा सा
The wire is flexible, so you can shape the branch accordingly. मी बोलते ना असं. तर हे थोडस आपल्याला खाली करता आलं है ना. जास्त कटिंग मी करणार नाहीये कारण जास्त कटिंग आवश्यक है, ज्यादा कटिंग इसेंशियल है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो पेड़ अच्छा नहीं दिखेगा. आणि आपको किती दिवस बांधून ठेवायचं असतं? वायरने किती दिवस बांधून ठेवायचं त्याला? हे वायर तुम्ही साधारण 5-6 महिने ठेवले की त्याला शेप येतो, मग वायर काढून टाकायची. बरं, ओके, थँक्यू मॅम. 5-6 महिने झाले त्याच्यावर ब्रश पडू द्यायचे नाही, तोपर्यंत त्याला शेप येतो. तसा ह्याला आपण थोडा कसा शेप दिलेला आहे, हे असं जाऊन पुन्हा हे तिरपं आलेलं आहे. आधी फांदी कशी होती, त्या प्रत्येक ब्रांचिंगला वायर करावं लागतं, पण आपल्याला आता वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे मी फक्त मेन ब्रांचला हे करून देत, शेप करून देते. इसेन्शियल आहे तेवढंच मी वायर करते, कारण प्रत्येक ब्रांचला असं शेप करून पॅड बांधावे लागतात, तेव्हा ते झाड सुंदर होत. आता नेक्स्ट ब्रांच, आता सेकंड ब्रांचला आपण वायरिंग करणार आहोत. फांदी ठीक आहे, त्यामुळे आपण त्या ब्रांचला आता इथं तुम्हाला स्पष्ट दिसेल की ह्या फांदीला आपल्याला शेप द्यायचा, तर ह्याच्या खाली आपण वायर गुंडाळणार, इससे नीचे हम वायर लपेट लेंगे. पहले ब्रांच ऐसी है तो हम उसको झुकाकर शेप देकर नीचे लाएंगे. खाली आपण मेन ब्रांचला शेप देणार आहोत आणि आपण ब्रांचेसच्या दोन ब्रांचेस मध्ये अंतर ही ठेवणार आहे. 2 ब्रांच में अंतर भी रखना चाहिए. अब ये स्ट्रेट है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे झुका के इधर मोड़ लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा. अब तीसरा ब्रांच है, ये थोड़ा क्या है, ज्यादा थिक नहीं है, इसलिए हमने पीछे 2 ब्रांच के एक बनाएंगे और बाकी के सब ब्रांचेस हम वैसे ही रखें. फ्रंट अपेक्स जी है. असू दे, जरा त्याला बरोबर आकार यायला. अब ये छोटी ब्रांच थी, उसका हम अपेक्स बनाएंगे, तो ये नीचे से उसको ये जो ब्रांच है वो बाजू में है, इसको अपेक्स की तरह खींच लेते हैं. देखिए बाद में वो सब जो कट है वो मर्ज हो जाएगा इसमें.
काढायला हवी. हाँ, ये भी निकाल देंगे. ये सब ब्रांचेस है वो सब निकाल देते हैं. कितना भी तुम वायरिंग से क्या होता है, कैसा भी तुम सेट दे सकते. तो अभी ये स्ट्रेन लाइन सब ब्रश बाद में. अब 2 का ही एक बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटी है और देखने में अच्छे नहीं. ये जब हाँ, अब ये 2 का एक बनाएंगे. ये बहुत ही छोटे, इसके हिसाब से ये बहुत छोटी है, इसलिए हम 2 का एक बनाएंगे और ये कुछ दिनों के बाद वो सब एक हो जाएगी. हाँ, त्याला करते की बाहेर त्याला छोटं लागेल. इसको भी हम नीचे से लपेट देंगे. ये भी हम नीचे ले सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं. ये ब्रांचेस में क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा तो सब पहला वायरिंग को भी एक छोटा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको ये सब ब्रांचेस को भी मैं थोड़ी सी वायर कर देती हूँ. खाली सोडून बस अब वायरिंग हो गया. इसको थोड़ा सा पीछे करके इसको बाजू में हाँ. अब ये जो 2 ब्रांचेस है इसको हम एक ही वायर से
नजदीक है। ठीक है, करूँगा। बाद में हम ये थोड़ा सा ब्रांचेस कम करेंगे, क्योंकि कुछ ब्रांचेस बहुत ठीक है और कुछ बहुत ही पतली है, तो उसके हिसाब से पॉट के हिसाब से कम करेंगे। ठीक है, हाँ, ये बेनिफिट। ठीक है, ये हो गया। इस पर और थोड़ा काम करना चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से हम सब पूरा नहीं कर पाते। सब ब्रांचेस को वायरिंग करना चाहिए, उसका पेड़ बनाना चाहिए। तो अब तो ठीक है शेप। हाँ, इसके बाद हम पॉट में कैसे लगाते हैं वो दिखाएंगे। तब तक ये सब तुम्हें इसके लिए हम इसके लिए हम ये ओवल शेप का पॉट है, ये यूज करेंगे। और इसके लेंथ के हिसाब से पेड़ की लंबाई रखनी चाहिए, इससे 1.5 फुट। तो ये होल के ऊपर मैश कैसे डालने का है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये 3 जगह रही है और एक ऐसा आता है। मैं एक आपको दिखाती हूँ, एक होल कैसा बंद करने का। तो इसके लिए ये वायर है, इसको ऐसा शेप देने का। एक छोटी देता है का वायर, हाँ म्हणजे दाखवता येईल ती मोठी, हाँ कुठची का देणी। ये वायर है, इसको खाली ऐसा करने का। दिखाई दिया आपने? और बाद में ये इसमें लगाकर मैं दिखाती ये देखिए, ये इसमें लगाई है वायर नेट में, इससे वो फिक्स हो जाती है। ये देखिए, इसमें डाल दिया और ये ऐसे करने से फिक्स। और इधर से प्रेस करना, इसी तरह वो नेट इसको होल पर लगाने का। इससे क्या होता है, जो मिट्टी रहती है वो बह नहीं सकती। नहीं तो क्या और होल तो ड्रेनेज के लिए होल तो चाहिए, होल नहीं हो तो अपना पाइपलाइन अच्छा नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए जितने होल अच्छे हो उतना अपना पॉट अपना पेड़ अच्छा होता है, अच्छा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो पहले
आणखी एक वायर सपोर्ट और एक वायर लगाना पड़ेगा आपको। ये जो हमने वायरिंग किया है नेट पर वो ढकने के लिए ये हिलना नहीं चाहिए, इसलिए बनाए हैं। अब हम वायरिंग जो दूसरा करेंगे वो पेड़ ऐसा ही रखा तो वो फ्लैट की वजह से वो गिर जाएगा, इसके लिए उसको सपोर्ट के लिए वायर चाहिए। तो यहाँ वो सपोर्ट के लिए ये वायर तो ये जो है इसकी जगह भी ऐसी ये ओवल शेप है, इसके बीच में नहीं लगाने का पेड़, वो आधा भाग छोड़ के इस बाजू को, क्यों नहीं तो इसके इस बाजू को लगाते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता और उससे क्या होता है वो डेप्थ दिखती है, इसलिए वो सेंटर में कभी भी बोनसाई का ओवल शेप में नहीं लगाया जाता। पीछे के तरफ से वो वायर डालते हैं। बस खाली प्रेस करो। अब प्रेस हे रूट एवढेच होते। अब ये रूट की मट्टी सब निकाल कर ये प्लांट लाया है। इसको एक टैप रूट रहता है, लेकिन इसको तो टैप रूट नहीं है, बहुत सारे पेड़ को रहता है, वो टैप रूट कट करना चाहिए। छोटे जो रूट है वो रखने से कुछ नहीं ये होता, वो अच्छे रहते हैं। ये ज्यादा नहीं कट करने का, इसको रूट ही ज्यादा नहीं है इसलिए हमने कटिंग ज्यादा नहीं की है, तो ये ठीक है। और इसका जो टैप रूट रहता है वो भी नहीं है, तो टैप रूट कट करने से क्या होता है, टैप रूट कटने से बाजू के जो रूट है उसको ये उसकी वाट अच्छी होती है और पेड़ अच्छी तरह से पॉट में बैठता है, इसलिए टैप रूट कट करना ये अनिवार्य है। तो बस अब इसके ये जो रूट भी है वो बहुत ही सुंदर है, सभी जगह है, ऐसे ही रूट होना चाहिए। और ये रूट भी ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे सीधे। क्रॉस हो तो वो कट करके, नहीं तो उसको यू पिन लगा के वो सीधे करना चाहिए। तो बस अब है लगाते हैं। पहले इसको पहला जो लेयर रहता है ये ब्रिक का क्रश रहता है, ये देखिए ये ऐसा। नहीं तो ये तुम सैंड भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। आजकल ये भी नहीं मिलती, अब चीना बॉम्बे में तो नहीं मिलती, तो सैंड भी यूज कर सकते हैं। ये ब्रिक का रूट जो है, ये जो है इससे क्या होता है, इसमें इसको रूट जो है इसको नरिशिंग होता है, रूट अच्छे बनते हैं और जो पानी ज्यादा होता है वो सब ऑब्जर्व कर लेता है, और कब उसको पानी कम पड़े तो ऑब्जर्व किया हुआ जो पानी है वो पेड़ को मिलता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये मट्टी में डालना पड़ता है। आजकल ये मट्टी बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके आते हैं, कोई कैसा ये करता है, कोई लोग जापान से ही फाइल वगैरह मंगाते हैं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे सॉइल में भी उतनी पावर है, उतने ही पेड़ अच्छे आते हैं। अब इसको बोनसाई की सॉइल, ये जो मैंने बोला आपको सैंड है, इसमें ये है वर्मी कंपोस्ट है और विथ का चूरा है, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड डाला है, थोड़ा सा इसमें पेस्ट कंट्रोल BSC ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो नहीं होते, फंगस वगैरह फंगीसाइड कौन से भी वो इसमें मिट्टी में डालना चाहिए। तो देखिए ये सब हमने क्या किया, ये सब स्प्रे की, ये दिखता है ये। बस 1/4 इंच आधा इंच तक हमने ये बोनसाई की सॉइल देखी। तो आप इसका फ्रंट लाइन देखेंगे, ये इसका फ्रंट लाइन है, सब पहले ये ऐसी तरह से हमने क्या किया, इस पर ये पेड़ वायर से फिक्स किया। अब ये पड़ेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद 7-8 महीने के बाद वो अपना रूट फैलते हैं और वो पेड़ फिक्स हो जाता है। बाद में सब ये वायरिंग सब निकाल लेने का। अब ऊपर से मिट्टी डालेंगे, चॉपस्टिक है बघा, त्या पाउच मध्ये। अब तो ये सीजन पेड़ लगाने के लिए ठीक है, अच्छा है। जून जुलाई और इस सीजन में फूल फल लगते हैं नए नए पेड़ पर। के लिए ये सीजन भी बहुत अच्छा है। नहीं सब ये मिट्टी डालने के बाद इसको चॉपस्टिक से इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसा ये करके तब मिट्टी जो रूट है वो सब मिट्टी में जाना चाहिए, हवा नहीं रहनी चाहिए। हवा रहने से वो रूट क्या होगा, रूट को मिट्टी पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए चॉपस्टिक से सब मिट्टी सब फैला लेना चाहिए। और इसको पानी देने का हो तो पहली बार पानी देने के लिए और टब में एक प्लांट ऐसा ही रखने का, क्योंकि ये जो लेयर है वो पानी डालने से मिट्टी सब बह जाएगी और टब में पानी डालने से क्या नीचे से
पानी ऊपर आ जाएगा और वो लेयर जो है वो फिक्स बैठेंगे और सभी जगह अच्छी तरह से पानी मिल जाएगा। माती अजून थोडीशी लागेल। अब हम पेड़ तो हो गया, अब उसका थोड़ा सा हम लैंडस्केपिंग करेंगे। छोटा पाहिजे होता का झाड? बरोबर आहे, ठीक आहे। लांबून बघा, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंडस्केपिंग करेंगे। लांबून प्रपोर्शन मध्ये थोडीशी कात्री द्या आपण। थोड़ा सा बहुत सारा ठीक इसके हिसाब से वो ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ब्रांचेस उसके कम करेंगे। मॅडम हे जसं जसं वाढत जाईल तर त्याची मुळं परत कापायची असतात का? मुळं हा ते रिपोर्टिंग करावं लागतं। जेव्हा पूर्ण पॉट मुळाने भरतो आणि होल मधनं मुळं बाहेर यायला लागतात तेव्हा ते पावसाळ्यात काढायचं, रूट कट करायचे आणि पुन्हा आपण या पद्धतीनेच पुन्हा लावायची। बर, थँक्यू। या पद्धतीनेच पुन्हा लावायचं, लावायला हीच पद्धत आहे। आता आपलं हे लावून झालेलं आहे, थोडंसं आपण ह्याला लँडस्केपिंग करूया। दगड द्या थोडे आणि थोडीशी माती द्या आणि पंप द्या स्प्रे करायला। खूप वेळ कोरडं हे ठेवायचं आणि मॉस पण आहे बघा, मॉस आहे का ह्याच्यामध्ये। थोडंसं आपण आता लँडस्केपिंग करणार आहोत, थोडंसं म्हणजे दिसायला आणखीन बरं वाटतं, ते बघायलाही छान वाटतं। आता लँडस्केपचे सुद्धा भरपूर प्रकार आहेत, पेन्सिल आहे, चायनीज, जापनीज, काही आहे, असे बरेच प्रकार आहेत। तुम्ही जसं अभ्यास कराल तसं तसं तुम्हाला त्यातलं नॉलेज, त्यातली आवड अशी म्हणजे हे होईल। आज जे आपण केलं आज ते फक्त बेसिक आहे, की फक्त तुम्हाला आज काय फक्त बॉन्साय म्हणजे काय, त्याचे प्रकार किती हे माहिती होऊन जाईल। पण खरा तुम्ही अभ्यास सुरुवात करायची तर तुम्ही झाडं लावायला सुरुवात करा, कसं का असेना, आणि ते झाडच नंतर आपल्याला शिकवतं की आता मला काय पाहिजे, तर सुरुवात करायची। पासून आपले इंडियन खूप सारे फायबरच्या व्हरायटी आहेत, तर खूप आपल्याला हे पण आहे त्याच्यामध्ये। तर दगड त्यासाठी उथळच घेतला पाहिजे असं आहे का याला लावायला? पॉट हा उथळच असला पाहिजे का लावण्यासाठी? उथळत असला पाहिजे। काही आता तुम्ही गुंजीम वगैरे बघितलं त्याला जरा उंच लागतो, पण उथळ ह्याच्यामध्ये इफेक्ट आपल्याला छान मिळतो। तुम्ही हे जर झाड मोठ्या उभ्या कुंडीत लावलं तर तुम्हाला साध्या कुंडीसारखंच वाटेल, बोन्सायचा मोठ्या झाडाचा इफेक्ट येणार नाही। Shallow trays, are good because they can show the tree is big. And it's also brown, so it looks more like the earth, as though it's growing in the ground. हाँ, बिल्कुल बराबर है आपका। तो बीच थोडासा नॅचरल लुक यायला आपण ब्रिज पण दगडाचाच केलेला आहे। दगडाचाच
ब्रिज केलेला आहे. आपण बाहेरचं काही वेगळं न लावता, की आता आपण कोकणात वगैरे जातो तर दगडाचेच भराव केलेले असतात, दगडाचेच ब्रिज असतात, तर त्या पद्धतीनं थोडस. The rocks used are weathered rocks, seaside rocks, which have been impacted by the water. That's why you see lot of indentation. हाँ, रॉक जो चाहिए वो पोरस चाहिए, उसको छेद चाहिए, वो पानी अब्जॉर्ब करना चाहिए, उसमें रूट निकलना चाहिए. ऐसे रॉक इसमें यूज करते हैं. लाइमस्टोन है, ये जांबा बोलते हैं इसको, ये कोकण में ज्यादा मिलता है. और लाइमस्टोन पोरबंदर रॉक का क्या आता है. ऐसे बहुत सारे रॉक आते हैं कि जो पोरस होते हैं, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं. पोरबंदर लाइमस्टोन आहे जास्त. पोरबंदर rocks are most from near the sea. पोरबंदर जास्त लाइमस्टोन Those are आहे. laterite rocks you find. हा, तर आपण सगळे सायन्सचे अभ्यासक आहात, त्यामुळे आपल्याला रॉकचे हे वगैरे म्हणजे प्रकार पद्धत वगैरे सांगायची काही फारशी म्हणजे अभ्यास आपला जास्त असल्यामुळं आपण बरेचसे प्रकारचे रॉक ह्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडस तो पांढरा आहे, आता पाण्याचं हे जरा दाखवण्यासाठी इथे. आणि जे आपण हे वापरतो ते झाडांना पूरक असावं. आपण जे मटेरियल शोभेसाठी वापरतो किंवा यूज करते हे मटेरियल वो सब ऐसे नेचुरल रिलेटेड होना चाहिए, इको फ्रेंडली. बरोबर आहे. ते ड्रिफ्टवूड पण वापरू शकतात ना. हाँ, ड्रिफ्टवुड भी यूज कर सकते हैं. वो बहुत सारे अलग अलग स्टाइल है, की स्टाइल. हाँ, तो उसके हिसाब से हाँ यूज कर सकते हैं. तो ये समझो एक तालाब के किनारे एक पेड़ है, उसको ऐसा हमने थोड़ा सा लुक दिया है. किमूरा का आप ओमिया में देखे क्या? उनका घर ओमिया में गए थे? हाँ, ओमिया में नहीं, वो थोड़ा सा उसका किमोराचा ओमियाच्या बाजूला आहे, कुठे साइड में है वो जगह. कारण ओमिया तर भरलेला आहे ना सबुरो कातो. हा, नाही थोडंसं अलग, तिथनं 60-70 किलोमीटर होतं बघा. अच्छा. हा, ओमिया विलेज पासून. खूप छान, चांगला अनुभव. आता माझे ते सगळे फोटो म्हणजे नाही दाखवत आले. खूप सुंदर गार्डन आहे, जापनीज गार्डन फार सुंदर आहे. तो मजिशियन आहे, तर एकदम इलेक्ट्रिकचं करून एकदम मस्त चिजल करतो झाडांना. हो, तो तर त्यातलं जादूगार. थोडस आपण ग्रीनरी दिसायला आपण हे थोडस हे लावते. आणि ते मॉस, हे विटांवरचं मॉस आहे. त्याला खूप छान व्यवस्थित, हे घाईत करण्यासारखं नाहीये, व्यवस्थित वेळ द्यायला हवा. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारचं म्हणजे असं घाईत केल्यानं फ्लॉवर अरेंजमेंट म्हणा किंवा बोनसायचं हे आहे. आता थोडस वेळ काढून, आपल्याला टाइम लिमिटेड आहे, त्यामुळं आपण थोडं गडबडीनं करतोय. एकदम पेशन्स हवंय. हा, पेशन्स. आणि आता तुम्ही म्हणजे चक्रवर्ती मॅडम म्हैसूरला वगैरे जाऊन आल्या असतील. तिथले तर स्वामीजी म्हणजे मेडिटेशन साठी हे करतात. ते स्वतः पण खूप ह्याच्यासाठी प्रयत्न करत असतात, कन्व्हेन्शन धरून. ते बॉन्सायला पुष्कळ हे दिलंय त्यांनी. हा, इंडियामध्ये खूपच मैसूरचं खूपच केले ते. खूपच केले. आपण ह्या ज्या क्षेत्रातली जेवढी माहिती ह्या ह्याच्यातली घेऊ तेवढी कमी आहे. आता ह्याच्यानंतर आपण बहुतेक थोडं झालेलं आहे. दुसरं प्लांट लावायची काही गरज आहे इथे. थोडस काय, झाडं निसर्गात एकटी नसतात.
त्याच्या बाजूला मोठी झाडं असतात. आता हे छोटंसं प्लांट आपण लावणार आहोत. मॅडम एकदा हे लावून झाल्यानंतर याला पुढे मेंटेनन्स म्हणजे थोडंसं एकदा आपण त्या ह्याच्यात गेलं की आपल्याला कळतं. त्या ह्याच्यातून थोडस माती घालायचं. सुधा मॅडम, इम्पिरियल झाडं असतात ना बॉन्साई, हो, त्यांना हो. 50-60 वर्ष ट्रेनिंग देतात Training आणि देतात. एका झाडा पाठीमागे एक मास्टर असतात. हो बरोबर आहे. ते लोक तेवढे अलर्ट आणि हे असतात ना. खूपच छान. आपण पॅलेस जवळ बघितलं इंटिरियर बोर्डसाठी मोठे मोठे छान बोर्ड अगदी, आणि खूप छान छंद आहे आपल्या म्हणजे लेडीज साठी तर मेडिटेशन साठी सुरेख. आज छोट्याशा झाडाला फळ आलं, छोट्या झाडाला पान आलं, बघण्यात जो निसर्गाचं निरीक्षण करण्यात जो आनंद आहे, जो आनंद आहे तो अगदी अवर्णनीय असतो. ये दूसरा पौधा भी बोनसाई है या फिर डेकोरेशन के लिए लगाया है? मस्त. आणि त्याच्यात हे आहे त्या ह्याच्यामध्ये म्हैशीवर बसलेला एक माणूस. इट्स रिअली एक्सक्विजिट. हा, आवडलं व्हेरी नाईस. सगळ्यांना? मस्त आहे मॅडम, मस्त आहे. वंडरफुल. मैडम, थँक्यू व्हेरी मच. एक क्वेश्चन है. हा, विचारा. आपने काही दो असेल तर लाइन- विचारा. मी माझ्या परीने मी म्हणजे सांगेन, काय हरकत नाही. हिंदीमध्ये मी पहिल्यांदा बोलले. तसं लिहू शकते पण बोलण्याचं आहे. फारच छान माहिती दिली मॅडम तुम्ही. खूप काही शिकायला मिळालं. आणि थँक्यू व्हेरी मच. आणि एक्झिबिशन भरपूर, म्हणजे आज फक्त इंट्रोडक्शनच झालंय. खूप शिकण्यासारखं आहे. गेली 35-40 वर्ष मी ह्या कलेच्या ह्याच्यामध्ये आहे. मी हाऊसवाईफ आहे. छंद म्हणून मी जोपासला, नंतर त्याला आपोआपच चांगलं स्वरूप मिळत गेलं आणि छान. आता तर मस्त खूप मैत्रिणी, खूप ओळखी त्या निमित्ताने झाल्या. तर खूप माझे दिवस अगदी आनंदात जातात त्या ह्याच्या आर्टमुळे. मॅडम कित्येकदा आम्ही एक्झिबिशन्स मध्ये वगैरे बोन्सायचे प्रकार बघितले होते, पण आज तुम्ही ज्या प्रकारे समजावून सांगितले त्याची विविधता कळली आणि अगदी डोळ्याचं पारणं फिटलं म्हणतात ना, तसं झालंय बघा. हो, वाव, थँक्यू व्हेरी मच.